আজকের আমাদের এই প্রোগ্রাম রয়েছে স্পেশাল প্রোগ্রাম এই সপ্তাহে। তো সবটা আগে আপনারা সবাই আমাদের সঙ্গে থাকবেন। এই সপ্তাহে আমাদের সঙ্গে আমাদের স্পিকার রয়েছেন, পরে ইন্ট্রোডাকশন হবে। তো শুরু করার আগে আমি প্রার্থনা করি। আসুন আমরা সবাই প্রার্থনা করি। স্বর্গের জীবন্ত ঈশ্বর পিতাকে ধন্যবাদ দিয়ে তুমি যে একটা সুন্দর মুহূর্ত দিয়েছো। এই মুহূর্তে পিতা তোমার চরণতলে আসি আমরা, যে আমাদের এই গুগল মিটের মধ্যে থেকে যতজন উপস্থিত রয়েছে পিতা, তুমি তাদেরকে আশীর্বাদ করো, এবং যারা জয়েন করছে পিতা তাদেরকেও তুমি আশীর্বাদ করো। যতজন উপস্থিত তাদের মনের দরজা খুলে দাও, যেন তারা বুঝতে পারে, তারা যেন তোমারই পথে চলতে পারে। স্পিকার যে বলবে তাকে তুমি আশীর্বাদ করো, সে যেন তার কথা নয় বাইবেলের কথা যেন সে বলতে পারে এবং তোমার প্রশংসা করতে পারে পিতা। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত তুমি সঙ্গে থেকো, যে প্রার্থনা করি যিশু নামে চাই, আমেন। এখন আমরা একটা গান করব। গানের জন্য আমি রিকোয়েস্ট করি সুপ্রীতি বেরা। গুড আফটারনুন সবাইকে। এখন আমরা ঈশ্বরের স্তুতি প্রশংসায় গানে যাব। का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ जन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ जन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी जिंदगी के हर परेशानी खुल जाता है आशा का दर, मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का दर, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु कितना यीशु ही मेरा जीवन साथी, कितना अच्छा है वो कितना धन है वो, यीशु मेरा जीवन साथी, मेरे जरूरत को पूरे करता है को, कोई
घटी नहीं मुझको, मेरे जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, मेरे आयु के दिन में पगे पगे में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरे आयु के पगे पगे सदा तेरी सेवा पूरी करूँगा। आ रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उनकी संगति में रहूँगा। साथ चलूँ जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ধন্যবাদ সুপ্রীতিকে। এখন আমরা শুরু গানে যাব। গান করবেন জয়ন্তী মারান্ডি। গুড আফটারনুন সবাইকে। প্রভু দিলেন জীবন, করলেন আমায় আপন, ভুলবো না আমি কোনোদিন। প্রভু দিলেন জীবন, করলেন আমায় আপন, ভুলবো না আমি কোনোদিন, ভুলবো না আমি কোনোদিন। তুমি আমার ঈশ্বর, আমি তোমার সব করিব। তুমি আমার ঈশ্বর, আমি তোমার সব করিব। চরণের প্রদীপ হয়ে চিরদিন জ্বলে রইব, চরণের প্রদীপ হয়ে চিরদিন জ্বলে রইব। প্রভু দিলেন জীবন, করলেন আমায় আপন, ভুলবো না আমি কোনোদিন, ভুলবো না আমি কোনোদিন। তুমি জীবন আমার, আমি যেটুই তেমন তোমার। তুমি জীবন আমার, আমি যে তেমন তোমার। যে গান তুমি আমি চিরদিন, যে গান তুমি দিয়েছ গে যাবো আমি
আমি চিরদিন। প্রভু দিলেন জীবন, করলেন আমায় আপন। ভুলবো না আমি কোনোদিন, ভুলবো না আমি কোনোদিন। আমেন। ধন্যবাদ জয়ন্তী মারান্ডিকে। আমি খুব আনন্দ যে আমাদের সঙ্গে 24 মোবাইল কানেক্ট হয়েছে। তো এখন আমরা শুরুতে যাব। আমাদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন সাউথ বেঙ্গল সেকশনের প্রেসিডেন্ট পাস্টর দেবেন্দু দাস। ওনাকে আমি রিকোয়েস্ট করব যে উনি আমাদের শুরুর প্রার্থনা করবেন। ওপেনিং প্রেয়ার, প্রার্থনা করব। মৃণাল, তুমি প্রার্থনার জন্য বলেছো? ইয়েস স্যার, প্রার্থনা। ওকে ওকে, লেটস প্রে। হে আমাদের মঙ্গলময় ঈশ্বর পিতা, তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু। এই অপরাহ্নে আমরা সকল মিলিত হয়েছি আমাদের নবযুবক যুবতীদের সঙ্গে এবং একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে যেখানে শিক্ষার বিষয় রয়েছে এবং যেখানে পার্টিসিপেশনের বিষয় রয়েছে। প্রভু, তোমাকে ধন্যবাদ দিয়ে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। এবং যিনি রয়েছেন এখানে আজকে বিশেষ বক্তা, তাকে তুমি বিশেষ আবাদ করো শৈলেশ সেনারেকে, যেন তার মুখের বাণী, যে শিক্ষা তিনি দিতে চান, যেন আমাদের বেঙ্গলের যুবক যুবতীদের একটি নতুন আলো জেগে ওঠে, নতুন ইচ্ছা জেগে ওঠে প্রভু তোমার সেবা করার জন্য। তুমি সারো তোমার আশীর্বাদে এবং তোমার উপস্থিতি যেন এই সম্পূর্ণ প্রোগ্রামের মধ্যে থাকে। এই প্রার্থনা ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে চাই, আমেন। আর আমি স্যারকে রিকোয়েস্ট করব স্পিকারের ইন্ট্রোডাকশনটা করে দেন। ওকে, ইন্ট্রোডাকশন। তার পরিচিতি দেওয়ার জন্য আমাকে রিকোয়েস্ট করা হয়েছে। এবার যিনি বলছেন একজন তিনি হচ্ছে ডক্টর শৈলেশ সানাডে। ওনার একটা কোয়ালিফিকেশন হচ্ছে মিউট করে দাও। ওকে, উনি ব্যাচেলর অফ অল্টারনেটিভ মেডিসিন করেছেন। আর সেই ফিল্ড থেকে একটা ডাক্তারি ফিল্ড থেকে উনি এসেছেন। সেখান থেকে এসে এখন ফুল টাইম মিনিস্ট্রি করছেন। এবার কি কি করেন আমরা জেনে নিই। হোপ চ্যানেলে হিন্দি স্পিকার উনি। আমাদের সেভেন্থ অ্যাডভেন্টিস্টের যে চ্যানেলটা রয়েছে হোপ চ্যানেল, সেখানে হিন্দিতে স্পিকার। অ্যাডভেন্টিস্ট ওয়ার্ল্ড রেডিওতে উনি মারাঠি ভাষায় উপদেশ দেন এবং ইট ইজ রিটেন, তারও মারাঠি স্পিকার। তার সঙ্গে আমি জানি না তোমাদের মধ্যে কজন ইউথ ছিলে ব্লাইন্ড স্কুল কলকাতাতে, উনি আইওয়াইসি কোঅর্ডিনেটর হিসাবে এখানে এসেছিলেন এবং সাউথ বেঙ্গল থেকে আমাকেও তখন আমন্ত্রণ করেছিলেন। আমি হয়তো একদিন ছিলাম, তারপরে আমরা বিভিন্ন কাজে বেরিয়ে পড়েছিলাম, তো বিশেষ পরিচয় হতে পারেনি, কিন্তু ফোনের মাধ্যমে কথা হয়েছিল তার সঙ্গে। ওনার পিতা একজন রিটায়ার্ড অ্যাডভেন্টিস্ট পাস্টর ফ্রম কোলাপুর। উনি মহারাষ্ট্র থেকে, এবং যে প্রভুর সেবা এখন সঠিক ব্যক্তি যিনি আমাদের সাউথ বেঙ্গলের ইউথদের জন্য একটা ইন্সপিরেশন হয়ে আজকে কথা বলবেন। তিনি আইওয়াইসির কোঅর্ডিনেটর ও আছেন। সেজন্য আমার মনে হয় যে মৃণাল এবং সমিত এরা একদম সঠিক ব্যক্তিকে আজকে রিকোয়েস্ট করে ধরে নিয়ে এসছেন এই প্ল্যাটফর্মে। We want to welcome Dr. Shailesh Sanade. He had his qualification. He had his degree from alternative medicine
Bachelor of Alternative Medicine, and then presently is a practicing full-time doctor called ministry, and this ministry is a full-time job for him. He is doing ministry. He is a Hindi speaker for Hope Channel. He is a Marathi speaker for Adventist World Radio. He is also a Marathi speaker for It Is Written. And he is a son of a retired pastor, Pastor Manohar Sanade from Kolhapur. We must have met your father sometime. And we were there in Pune from 83 to 93 in Breakfast. And in all these years, and you know Das, who is the headmaster in Salisbury Park. They are my brothers and sister. They have adopted as their brother. So we were very close to the Marathi family in Pune, and so also you are an inspiration for the young people all over this country. And right now you are in direct contact through this platform, South Bengal section youth. So we welcome you, and rest of the time is yours. May the Lord speak through you to our young people. Welcome. आप सभी लोगों का मैं यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग यीशु मसीह के पंखों तले बहुत ही सुरक्षित हो। अगर मैं फिर एक बार आपसे सवाल पूछूं कि कौन सी भाषा में आपसे बात करूं तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि हिंदी भाषा में मैं आपके साथ यहोवा का वचन बांट सकता हूं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई भाई बहन है जो सिर्फ अंग्रेजी समझते हैं तो उनके लिए मैं अंग्रेजी में भी बात करूंगा, ठीक है। तो यहोवा का वचन हमें साफ तरीके से कहता है कि जो भी लोग नौजवान हैं उनके लिए यहोवा की विशिष्ट योजना होती है। भाई और बहनों, मैं आज से लेकर 3 दिन तक विशेष रूप से जो युवा उम्र 19 से लेकर 35 तक है, जिनकी उम्र 19 से लेकर 35 तक है, उन युवाओं के लिए मैं बातचीत करूंगा। और मैं विनती करना चाहता हूं यहोवा से कि वो हम सब लोगों को उसके वचन में अगुवाई करे। मैं सभी लोगों का इस यहोवा के वचन की तरफ स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि ये जो वचन है, ये वचन हमारी रूहानी जिंदगी के लिए बहुत ही लाभदायक ठहरेगा। आइए भाई और बहनों, हम प्रार्थना करेंगे। हमारी यहोवा, तू जो स्वर्ग में है, धन्यवाद करना चाहते हैं इस समय के, इस जिंदगी के लिए, जिंदगी के हर एक आशीष के होने दे यहोवा कि आज आपके वचन के जरिए हम आपके प्यार को आ सके, एहसास कर सके, उसका अनुभव कर सके और उसके जरिए यहोवा उद्धार की जिंदगी पाने वाले मसीह के लोग बन जाए। जिन तमाम लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों के ऊपर आशीष भर देना। मांगते हैं यहोवा कि आपकी मौजूदगी हमारे बीच में आए, पवित्र आत्मा से हमें मसा कर देना ताकि जो भी हम कुछ पढ़ेंगे वो आपकी इच्छा के अनुसार हो और हम उसके आपके वचन के अनुसार चलने वाले सच्चे मसीह के लोग बन जाए। छोटी आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन। और बहनों, यहोवा का वचन कहता है 2 तिमोथियस उसका 3 अध्याय 1 से आगे, यहां लिखा है, जो तिमोथियस नौजवान है, पौलुस उसको बहुत सारी बातें कहता है, बहुत सारा सलाह देता है और कहता है कि तिमोथियस, अगर तू मेरे सलाहों को मानेगा तो तेरी जवानी में, तेरी युवा वर्ष में तू बहुत सारी तरक्की करेगा। यहां पर लिखा है 2 तिमोथियस उसका 3 अध्याय और 1 वचन, पर यह स्मरण कि अंतिम दिनों में
कठिन समय आएंगे, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, मतलब आखिरी दिनों की बात यहां चल रही है। और आगे लिखा है दूसरे वचन में, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतघ्न, अपवित्र ऐसे होंगे। यहां पर यहोवा आमतौर पर और विशेष रूप से आखिरी दिनों में स्थिति क्या होगी उसके बारे में बताया। लेकिन जब हम ऐसे पढ़ते हैं कि मनुष्य स्वार्थी होगा, लोभी होगा, डिगमार होगा, अभिमानी, निंदक, माँ बाप की बात न मानने वाला होगा, तो हमेशा हम सोचते हैं कि ये दुनिया की बात चल रही है। हम हमेशा सोचते हैं कि ये दुनियादारी के लोग हैं जो यहां पर जिक्र किए गए हैं। लेकिन तीसरा वचन यहां पर लिखता है दया रहित, मतलब उनमें कोई दया नहीं है, मतलब कुदरती तौर पर उनमें कोई दया नहीं है, उनमें कोई प्रेम नहीं है। मतलब उनका जो प्यार है वो परमेश्वर से नहीं है। वो जो दया है वो दया कुदरती नहीं है, नेचुरल, इट इज नॉट अ नेचुरल अफेक्शन, दया रहित। अब दया रहित यहां पर अगर हम ये शब्द पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि दया रहित का मतलब सिर्फ न प्यार करना ये नहीं है। दया रहित मतलब जो प्यार सही होता है वो नहीं है। जैसे कि अगर शादी मर्द की हो तो उसकी शादी औरत के साथ चाहिए। लेकिन आखिरी दिनों में दया रहित का मतलब यह है कि सिर्फ वो जो प्यार लोगों के बीच में होना चाहिए वो प्यार नहीं है। ऐसा ही नहीं, बल्कि जो प्यार और जो स्नेह, जो दया है, वो जो मर्द और पति और पत्नी के बीच में होना चाहिए, या तो फिर जो शादी है जो पति और पत्नी के बीच में होनी चाहिए, या तो फिर लड़का और लड़की के बीच में होनी चाहिए, वो ना होते हुए लड़का लड़के से शादी करता है और लड़की लड़की से शादी करती है, वो वहां पर लिखा है कि वो दया रहित है। समझ में आ रही बातें? क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दया रहित का मतलब क्या है, विदाउट नेचुरल अफेक्शन। मतलब आमतौर पर वहां पर यह लिखा है कि समलिंगी विवाह, मतलब जो शादी होनी चाहिए वो शादी जो है वो मर्द और औरत के बीच में होनी चाहिए। लेकिन यहां पर मर्द के साथ मर्द शादी करता है और औरत के साथ औरत शादी करती है, उसे कहते हैं दया रहित। उतना ही नहीं, यहां पे लिखा है क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले की बैर, मतलब जो अच्छा काम करते हैं उनके दुश्मन। और जब हम ये शब्द पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये आखिरी दिनों में जो बातें कही गई है वो दुनिया के जो लोग हैं उनके लिए कही गई। लेकिन भाइयों और बहनों, अंतिम दिनों में यहां पर चौथे वचन में पढ़ेंगे कि क्या लिखा है। विश्वासघाती, मतलब विश्वास तोड़ने वाले, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं परंतु सुख विलास की ही चाहने वाले होंगे। मतलब ये लोग वो है जो जानते हैं कि उनको जीवित परमेश्वर यहोवा के ऊपर प्रेम करना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा प्रेम करने के बजाय वो जो उनको अच्छा लगता है उसके ऊपर ज्यादा प्रेम करते हैं। उसे कहते हैं परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। भाइयों और बहनों, आखिरी दिनों में दुनिया के लोग पाप में रहेंगे, दुनिया के लोग विश्वासघाती रहेंगे, ये तो हम जानते ही है। वो बातें यहां पर लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन यहोवा यहां पर ये बातें कह रहा है क्योंकि यहोवा का वचन कहता है कि ये सब बातें जो हम पढ़ रहे हैं वो यहोवा के लोगों के लिए। यह लोग अंतिम दिनों में बहुत सारे लोग स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माँ बाप की बात न मानने वाले, दोष लगाने वाले, विश्वासघात, ये सब होंगे।
इसलिए भाई और बहनों, बहुत बार हमें लगता है कि ये जो शब्द है ये दुनिया के लोगों के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन यह वचन कहता है कि परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले, मतलब इन लोगों को पता है कि हाँ, उनको यहोवा को चाहना है, यहोवा से प्रेम कर, लेकिन यहोवा के ऊपर प्रेम करने से ज्यादा वो पाप के ऊपर ज्यादा प्रेम करते हैं। समझ में आ रही बातें? बहुत बहुत जरूरी है। उतना ही नहीं भाई और बहनों, अगर हम मत्ती की किताब की तरफ जाएंगे तो वहां पर हमें बहुत ही एक दिलचस्प घटना दिखाई देती है, जहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह छोटे बच्चों को आशीष दे रहे हैं, उनको गोद में बिठा रहे हैं। यीशु मसीह जो है वो लोगों को चंगाई दे रहे हैं, लोगों की भलाई कर रहे हैं, और ये देखकर एक नौजवान इंसान यीशु मसीह के पास आ जाता है। वो नौजवान इंसान अमीर होता है, वो जवान इंसान अधिकारी होता है, और वो जवान होता है, और वो इंसान ये यीशु मसीह उसके जो छोटे बच्चे हैं, उनके जो चेले हैं, उनके ऊपर आशीष बरसाते हुए देखता है और यीशु मसीह के पास आता है और यीशु से क्या कहता है। भाइयों और बहनों, मत्ती उसका 19वां अध्याय और 16वां वचन यहां पे लिखा है। यहोवा के वचन में बहुत ही अद्भुत तरीके से लिखा है, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। मतलब सबसे महत्वपूर्ण सवाल अगर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित में है तो वो है, यहोवा, मैं उद्धार की जिंदगी पाने के लिए क्या कर सकता। इससे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूरी बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य में और कोई भी नहीं है। भाइयों और बहनों, अगर नौजवान, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो 19 से लेकर 19 से लेकर 35 तक जिनकी उम्र है, उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि जब आप युवा कहते हैं, यूथ कहते हैं, तो यूथ का भी समय होता है। मतलब युवा, उनकी भी आयु होती है। वो आयु जो होती है वो 19 से लेकर 35 साल के बीच में जो लोग होते हैं उनको युवा कहते हैं। तो भाइयों और बहनों, मैं आपसे ये बातें क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 19 से लेकर 35 तक जितने निर्णय लोगे वो निर्णय आपकी पूरी जिंदगी तय करते हैं कि आपकी जिंदगी कैसी होगी। आपकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन, आपके जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण, आपके जिंदगी का सबसे बड़ा और अच्छा समय वो होता है जब 19 और 35 के बीच में होते हैं, क्योंकि सबसे बड़े निर्णय जिंदगी के लिए, सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो होते हैं वो निर्णय आप 19 से लेकर उम्र 35 तक करते हैं। भाइयों और बहनों, बहुत बहुत महत्वपूर्ण वचन है। इसलिए मैं खास तौर से जो लोग नवयुवक है, नौजवान है, उनसे बात कर रहा हूं। यहोवा का वचन कहता है कि ये इंसान यीशु मसीह के पास आता है, वो चेला बनना चाहता है यीशु का। उसने यीशु मसीह को बच्चों को आशीष देते हुए देखा, बच्चों को गोद में लेकर उनको आशीष देते हुए देखा है, और चाहता है कि वो भी यीशु मसीह का चेला बन जाए, शिष्य बन जाए। यीशु मसीह के साथ बात करके वो कहता है कि यीशु मसीह उत्तम गुरुजी, बहुत अच्छे गुरुजी है आप, बताइए कि उद्धार की जिंदगी पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता। आगे लिखा है 17वें वचन में, उसने कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है, भला तो एक ही है। मतलब ये इंसान जो है, जो जवान है, अमीर और अधिकारी है, वो यीशु मसीह से कहते हैं कि भले गुरुजी आप भले हैं। तो यीशु मसीह कहता है कि मुझे भला क्यों कह रहा है, क्योंकि सिर्फ एक ही भला है और वो है यहोवा। तो क्या इसका मतलब यहां पर यह है कि यीशु मसीह अच्छे नहीं है, यीशु मसीह भले नहीं है? यीशु मसीह अच्छे हैं, यीशु भले है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बाकी के पापी लोगों के साथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहोवा भला है। आगे लिखा है यहां पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर।
भाई और बहनों, ये जो घटना है, ये घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो इंसान इस यीशु मसीह के पास आया है, ये सवाल लेकर आया है, और ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। हर किसी को यह सवाल पूछना है, और यीशु मसीह उसको कहता है कि मेरी आज्ञाओं का पालन, तब जाकर तू क्या हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा, और तू जिंदगी में प्रवेश करेगा। मेरी आज्ञाओं का मान। भाई और बहनों, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, चैलेंज करना चाहता हूं। मैं आप सब लोगों को चुनौती देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग में जवानी है, अगर आप लोग गर्म खून वाले हो, अगर आपके हथेली में ताकत है, तो बिना पाप की जिंदगी जीकर दिखाइए। देखते हैं कि कितने लोग मसीह में हैं, देखते हैं कि आपका खून कितना गर्म है। देखना चाहते हैं कि आपके हाथ में दम है। बिना पाप की जिंदगी जीकर दिखाना चाहिए, तभी जाकर हम कह सकते हैं कि सचमुच हम नौजवान हैं। बहनों, जब आप इस घटना की तस्वीर देखेंगे, कुछ चित्रकारों ने इनकी तस्वीर बनाई, यीशु मसीह और ये जो अमीर इंसान है, वो इंसान की तस्वीर एक खींची है और इस तस्वीर बनाई। बहुत बार आपको दिखाई देगा कि ये तस्वीर जो है, ये इंसान अपनी कमर के ऊपर ऐसे हाथ रख कर खड़ा है और यीशु मसीह से बात कर रहा है, और यीशु मसीह उससे बात कर रहे हैं। ऐसी तस्वीर आपको दिखाई। लेकिन भाई और बहनों, अगर एलन जी व्हाइट की किताब में पढ़ोगे, तो यहोवा का वचन कहता है कि ये नौजवान अमीर अधिकारी, ये जो है, ये यीशु मसीह के सामने घुटने टेके हुए हैं, घुटनों के बल खड़ा है, घुटनों के ऊपर वो गिरकर यहोवा से विनती करता है कि यहोवा, मैं तेरा चेला बनना चाहता हूं, आनंद जिंदगी पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए वो बोल। यहोवा उसको बोलते हैं, यीशु मसीह कहते हैं आज्ञाओं का पालन कर, तब क्या हो जाता है। 18वां वचन, उसने उससे कहा कौन सी आज्ञा है। यीशु ने कहा, यह कि हत्या ना कर, व्यभिचार ना कर, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, ये सब आज्ञाएं का पालन कर। तो ये आज्ञाओं का पालन करने के लिए यीशु मसीह से कहते हैं, तब जाकर उसको उद्धार की जिंदगी मिल जाएगी। भाइयों और बहनों, बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जब सूली चढ़े तो उन्होंने 10 आज्ञाओं का रद्द कर दिया, या तो फिर वहां पर खत्म कर दिया, इसलिए 10 आज्ञाओं का पालन करने की जरूरत नहीं है। यह साफ साफ झूठ है। क्या मैं आज खून कर सकता हूं, चोरी कर सकता हूं, व्यभिचार कर सकता हूं? अगर नहीं कर सकता तो मतलब यह है कि मुझे 10 आज्ञाओं का पालन करना होगा। इसलिए भाइयों और बहनों, यह जानना बहुत जरूरी है कि 10 आज्ञाओं के बिना, वो भी यीशु मसीह के मदद के बिना 10 आज्ञाओं का पालन नहीं हो सकता। इसलिए यूहन्ना की किताब उसका 15वां अध्याय और 14वां वचन कहता है कि यदि जैसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। यदि मतलब वहां पर हमें यीशु मसीह के ऊपर अगर प्यार जताना है तो 10 आज्ञाओं का पालन किए बिना हम उसके ऊपर प्यार नहीं जता सकते। अगर आप माँ बाप के ऊपर प्यार करते हैं तो आप माँ बाप की बात मानेंगे। यहोवा का वचन यहां पर कहता है, यीशु मसीह से कहते हैं जाकर आज्ञाओं का पालन कर और तब जाकर तू अनंत जिंदगी में प्रवेश कर पाएगा। आगे क्या लिखा है, 19वां वचन, उसने अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अब ये जो आज्ञा है, ये आज्ञा यीशु मसीह कहते हैं कि इसका पालन कर और फिर क्या कर, उद्धार की जिंदगी पा सकेगा। 20वां वचन, उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है। मतलब ये जो नौजवान है उसको आत्मविश्वास है कि उसने इस 10 आज्ञाओं का पालन किया है। ये नौजवान, जैसे हम लोग बहुत बार कहते हैं, इससे ज्यादा क्या करना चाहिए बोल, मैं तेरे लिए करूंगा। इससे ज्यादा क्या चाहिए बोल, मैं तेरे लिए करूंगा। यहां पर ये इंसान यीशु मसीह से प्यार नहीं करता, ऐसा नहीं है, बहुत प्यार करता है, और यीशु मसीह इससे प्यार करता है, और यीशु मसीह इसको
वैसे ही खाली हाथ जाने नहीं देना चाहता। इसलिए यहोवा यीशु मसीह से कहते हैं जाकर तो क्या कर, आज्ञा का पालन कर। यीशु मसीह से ये वापस जवाब देता है कि ये सब बातें मैंने, ये सब आज्ञा मैंने बचपन से रखी है। इसके अलावा अगर तू कुछ चाहता है तो मुझे बता, मैं वो करना चाहूंगा। इतना विश्वास ये इंसान को खुद के ऊपर है। भाई और बहनों, जवानी में हम बहुत बार खुद के बलबूते पर, खुद की शक्ति पर, खुद के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं, ना कि यीशु मसीह के ऊपर। यीशु मसीह उस आज्ञा पालन करने की बात कर रहा है, और ये इंसान आज्ञा जिसने दी है, जिसने आदम और हवा के हृदय पर आज्ञा लिखी है, उससे बात करके कहता है कि ये सब आज्ञा मैंने रखी है। 21वां वचन, यीशु ने उससे कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है, मतलब पूर्ण होना चाहता है, तू कहता है कि तेरे में कुछ कमी घटी है, मैं तुझे परिपूर्ण होने के लिए एक सलाह देता हूं। तू क्या कर, यदि तू सिद्ध चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे बोले। ये इंसान जो मसीह जो है, ये इस इंसान से बात करता है, कहता है कि जो कुछ तेरे पास है धन, वो तो क्या कर, गरीबों को, कंगालों को दे दे, तुझे वही धन और यहोवा का वचन साफ तरीके से हमें कहता है कि जब हम यीशु मसीह के पीछे हो लेने की बात करते हैं, तो हम ज्यादा तौर से जो हम खोने वाले हैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान रखते हैं, ना कि जो हमें मिलने वाला है। इस नौजवान ने वही गलती की।
यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू कंगालों को तेरा सब कुछ है वो दे दे, तुझे स्वर्ग में मिल जाएगा। यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा कि तू कंगाल ही रह जाएगा हमेशा के लिए, उद्धार की जिंदगी में भी, क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि इस इंसान के पास बहुत सारा धन है। तो यीशु मसीह उसे कहते हैं तुझे मिल जाएगा, लेकिन तुझे अभी जो तेरे पास है वो तुझे छोड़ना पड़ेगा। भाई और बहनों, सवाल पूछ रहा हूं, जवाब मत देना। सवाल पूछ रहा हूं, जवाब मत देना। हम में से कितने नौजवान लोग हैं जो उद्धार की जिंदगी के इस बाजू की जिंदगी, गौर से सुनिए, हम में से कितने नौजवान लोग हैं जो उद्धार की जिंदगी की इस बाजू की जिंदगी, मतलब इस दुनिया की जिंदगी में सफलता पाना चाहते हैं और इस जिंदगी में सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, भले उनको उद्धार की जिंदगी मिले या ना मिले, अभी की जिंदगी के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। भाई और बहनों, जो यहोवा दे सकता है वो ये दुनिया दे नहीं सकती, कभी भी नहीं। इस दुनिया को आपको देने के लिए कुछ नहीं है। जो भी नौकरी आपके पास है वो भी यहोवा ने दी है, भले आप कहां पर भी काम क्यों ना कर रहे हो। जो भी पैसा आपको मिल रहा है वो दुनिया ने नहीं दिया, यहोवा ने दिया है। जो भी जवानी आपकी है वो दुनिया ने नहीं दी, यहोवा ने दी है। भाई और बहनों, जो भी आपके पास कला है, गाना गाना, कोई भी संगीत बजाना, अच्छी तरह से बात करना, ये जो आप मीटिंग लगवाते हो, बंदगी करते हो, ये सब कुछ करना भले ही आप कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे भी यहोवा है। भाई और बहनों, इस नौजवान को, इस नौजवान अमीर अधिकारी को जितनी भी चीजें मिली थी यहोवा से मिली थी। जो चीजें यहोवा से मिलती है उसको यहोवा नहीं बना सकते। जो चीजें परमेश्वर यहोवा से मिली है उसको हम भगवान नहीं कह सकते, उसे हम भगवान नहीं बना सकते, उसे हमें भगवान के लिए इस्तेमाल करना है। ये बात ये इंसान भूल चुका था। आपके पास कुछ भी चीज हो, भले ही आपके पास पैसा ना हो, लेकिन अगर आप अच्छी तरह से गाना गाते हैं तो आप उस गाने को परमेश्वर नहीं कह सकते, आप उस कला को परमेश्वर यहोवा का स्थान नहीं दे सकते। अगर वैसा करेंगे तो यहोवा एक ना एक दिन वो जो कला है वो आपसे ले जाएंगे। अगर आपके पास संगीत बजाने की कला हो, आप अच्छी तरह से संगीत बजाते हैं, तो भाई और बहनों, अगर वो संगीत को आप परमेश्वर का स्थान देते हो तो यहोवा वो संगीत की जो कला है वो आपसे ले लेगा। बात इतनी आसान नहीं है। जो भी यहोवा ने आपको दिया है उसको यहोवा मत बनाओ, जो भी यहोवा ने आपको दिया है उसको यहोवा के लिए इस्तेमाल कीजिए। वो बात यहां पर चल रही है। सबसे अच्छा सवाल, लेकिन यहोवा का वचन कहता है कि ये मनुष्य, उसको बहुत बुरा लगा कि यहोवा ने ऐसी शर्त उसके सामने रखी, उसे बहुत बुरा लगा। वो सोच रहा था कि काश ये शर्त न होती तो कितना अच्छा रहता। भाई और बहनों, अगर हम उसके जगह पे रहते, अगर हम उसके जगह पर रहते, इस अमीर जवान अधिकारी के समय, मतलब उसके जगह पर रहते, तो हम क्या करते? भले हमारे पास पैसा ना हो अभी, लेकिन हमारे पास यहोवा ने दिया हुआ वचन है, यहोवा ने दिया हुआ समय है। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब लोग जो है वो ऐसे ही हाथ पर हाथ बैठकर नहीं बैठे, बल्कि कुछ ना कुछ आप जरूर कर रहे हैं। आप मीटिंग लगवाते हो, अलग अलग प्रचारकों को बुलाते हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपके हाथ से कुछ छूट के जा रहा है वो है समय, जो आपको वापस जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। 29 अगस्त 2020 आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया है। 30 अगस्त 2020 आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया है।
जो मौका आपने कल गवाया है वो मौका आपको शायद जिंदगी में वापस मिले या ना मिले। अगर आपके पास कुछ है तो आज, कल के बारे में भी भरोसा नहीं है। कल का उगता सूरज किसने देखा है? इसलिए भाइयों और बहनों, जो जिंदगी मिली है ना, वो जिंदगी में आपको पूरी तरह से यहोवा के लिए जीना है, ताकि आप खुश रह सके और आप उस जिंदगी का आनंद उठा सके। बहुत से नौजवान लोगों को लगता है कि यीशु मसीह ये करने के लिए बोलते हैं, वो करने के लिए बोलते हैं, वो करने के लिए बोलते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि यीशु मसीह जो है वो उनकी जो आनंद भरी जिंदगी है, उसकी उनके जिंदगी से आनंद और सुख छीनना चाहता है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन भाइयों और बहनों, अगर 10 आज्ञाओं की बात करें तो 10 आज्ञाओं के जरिए हमें आनंद की जिंदगी मिल सकती है और महफूज और सुरक्षित जिंदगी मिल सकती है। उसके बाहर कोई भी सुरक्षितता नहीं है, कोई भी सुरक्षितता नहीं है। कल्पना कीजिए कि अगर एक आज्ञा जो कहती है कि खून मत करना, ये आज्ञा ना होती तो आज हम जिंदा नहीं रहते। क्यों? क्योंकि बहुत पहले से, आदम से लेकर हर कोई हर किसी का खून कर देता, क्योंकि आज्ञा ही नहीं ना। हमारी भलाई के लिए यहोवा ने 10 आज्ञा दी है और यहोवा का वचन कहता है कि अगर सही मात्रा में, अगर हमें 10 आज्ञाओं का मानना होगा, 10 आज्ञाओं का पालन करना होगा, तो भाइयों और बहनों, हमें रास्ते पर उतरकर हर एक इंसान को मदद करनी होगी, हर एक इंसान को। अगर कोई बीमार है तो उसके लिए प्रार्थना करनी होगी, उसको अस्पताल लेके जाना होगा, उसको अस्पताल में जाकर मिलना होगा, तब जाकर हम 10 आज्ञाओं का पालन करने में हम यहोवा को दिखा सकते कि यहोवा, आपकी मदद से ही, हम में कुछ भलाई नहीं है, हम में कुछ ताकत नहीं है, आपकी मदद से ही हम कुछ कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग अगर किसी चीज को परमेश्वर नहीं कह सकते ना, तो खुद को ही परमेश्वर कह देते हैं, खुद को ही परमेश्वर बना देते हैं। कुछ दिन पहले मैं पुणे में मेरी गाड़ी चला रहा था और मेरी आदत है कि आगे वाली जो गाड़ी चल रही है उसके पीछे क्या लिखा है वो पढ़ने की मुझे बहुत आदत है, हमेशा मैं पढ़ता रहता हूं। और वहां पर लिखा था, कौन कहता है कि इस दुनिया में परमेश्वर नहीं है, कौन कहता है कि इस दुनिया में देवता नहीं है, मैंने उनको खेलते हुए देखा है, मैंने उनको खेलते हुए देखा है। और वहां पर किसकी तस्वीर थी? सचिन तेंदुलकर की तस्वीर थी। कौन कहता है कि इस दुनिया में देवता नहीं है, मैंने उनको खेलते हुए देखा है, और वहां पर सचिन तेंदुलकर की तस्वीर थी। भाइयों और बहनों, यहोवा का स्थान हम किसी भी चीज और किसी भी इंसान को नहीं दे सकते, कभी नहीं। इस अमीर जवान अधिकारी ने अपने धन को परमेश्वर कहा। वो गाड़ी वाले ने, जिसके गाड़ी के पीछे ये कुछ लिखा था, उस गाड़ी वाले ने सचिन तेंदुलकर को अपना परमेश्वर माना। आपका परमेश्वर कौन है? बहुत सारे लोग घमंड करते हैं। यहोवा का वचन कहता है कि अंतिम दिनों में लोग जो परमेश्वर के हैं उनकी स्थिति क्या होगी। ऐसी बात यहां पर नहीं है कि वो परमेश्वर से बिल्कुल प्रेम नहीं करते, ऐसी बात है कि वो परमेश्वर के ऊपर कम प्रेम करते हैं और दुनियादारी और पाप के ऊपर ज्यादा प्रेम करते हैं। दुनिया के लोग पापी है वो बात अलग है, वो बात वहां पर नहीं लिखी तीमुथियुस की किताब में। यहोवा के लोगों की बात वहां पर चल रही है। और भाइयों और बहनों, मेरी विनती आप लोगों से ये है कि हम और आप उद्धार की जिंदगी जो है उसको अच्छी तरह से समझ लें, उसकी जो कीमत है वो कीमत अच्छी तरह से समझ लें। बहुत सारे लोग उद्धार की जिंदगी की कीमत नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उनको दुनियादारी की जो चीजें हैं वो ज्यादा कीमती लगती है। वो जितनी ज्यादा कीमती लगेगी उस वक्त दुनिया, मतलब ये उद्धार की जिंदगी है ना, उसकी कीमत नहीं पता चलेगी। नहीं, जब तक आपके पास दुनिया की चीजें हैं तब तक आप स्वर्ग की चीजों की कीमत नहीं जानेंगे भाई और बहन। इसलिए यहोवा कभी कभार जो हमने हासिल किया है, जो हमने प्राप्त किया है, वो ले लेता है
हम उसे खो देते हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं रहता। बाद में यहोवा कहता है कि ठीक है, अब तुझे उद्धार की जिंदगी की जरूरत है। भाई और बहनों, बहुत सारी चीजें हैं। मैं खास तौर से 19 से लेकर 35 की उम्र के लोगों से बात कर रहा हूं। मैं नहीं जानता कि आपकी उम्र क्या है, मैं ये भी नहीं जानता कि कितने लोग देख रहे हैं, लेकिन मुझे कहा गया है कि युवा, कि जो आप युवा वर्ष में करते हैं, जो आप उस उम्र में करते हैं, वो बाद में नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोगों को मैं सवाल पूछता हूं कि आपकी उम्र क्या है, वो कहता है कि मेरी उम्र 20 है। तो मैं कभी कभार सोचता हूं कि काश मैं 20 साल का होता। मैं कभी कभार लोगों को पूछता हूं कि आपकी उम्र क्या है, कोई बोलता है कि 25 साल है। मैं सोचता हूं कि काश मैं 25 साल का होता। 19 से लेकर 35 तक, गौर से सुनिए भाइयों और बहनों, 19 से लेकर 35 तक आप वो निर्णय लेते हैं जो निर्णय आपको जिंदगी जो है वो अलग अलग मुकाम पर लेके जाती है। जैसे कि 19 से लेकर 35 तक आप निर्णय लेते हैं कि कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए। 19 से लेकर 35 तक आप निर्णय लेते हैं कि कौन सी नौकरी करनी है, पढ़ाई करने के बाद कौन सी नौकरी पकड़नी है। वहां पर आप निर्णय लेते हैं कि कितने तनख्वाह की नौकरी चाहिए, कितना पैसा उस नौकरी से मिलेगा मुझे। यहां पर नौकरी करूंगा तो ज्यादा पैसा, वहां पर नौकरी करूंगा तो ज्यादा पैसा। उसी उम्र में आप सोचते हैं, चुनते हैं कि आप कहां पर काम करने वाले हैं, कौन सी कंपनी में, कौन सी जगह पे काम करने वाले हैं, कौन से चर्च में काम करने वाले हैं। उसी उम्र में आप सोचते हैं कि किसके साथ शादी करने वाले हैं, किसके साथ शादी करने वाले हैं। उतना ही नहीं भाई और बहनों, परिवार अगर आप बढ़ाना चाहते तो वो भी तय करना उस वक्त ही होता है। इसलिए भाई और बहनों, ये सब जो चीजें हैं, ये सब जो निर्णय है, ये निर्णय 19 से लेकर 35 तक लिए जाते हैं आमतौर पर। इसीलिए ये जो समय है ना 19 से लेकर 35 उम्र का, ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर हम गलती करते हैं तो 35 से लेकर आप 100 साल तक क्यों ना जिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो गलती 19 से लेकर 35 तक हो जाती है, वो गलती आप चाहे तो भी सुधार नहीं सकते। जितनी भी गलतियां हुई है भाइयों और बहनों, अगर आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य की किताब में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि नौजवान लोगों ने अगर गलतियां की है तो 19 से लेकर 35 तक। अगर आपने नौजवानों को देखा है जिन्होंने यीशु मसीह के पीछे होकर अच्छी जिंदगी गुजारी है, तो वो भी 19 से लेकर 35 तक। भाई और बहनों, जब हम यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं तो ज्यादा समय और ज्यादा सोच, ज्यादा ध्यान हमारा वहीं पर होता है कि हम कितना खोने वाले हैं। इसी के ऊपर ज्यादा ध्यान होता है, ना कि यीशु मसीह हमें क्या देने वाला है। बताइए मुझे कि उद्धार की जिंदगी के मुकाबले जितनी भी आपको कीमत मिलेगी, जितना भी पैसा आपको मिलेगा, क्या उद्धार की जिंदगी के साथ वो तौल सकते हैं? कल्पना कीजिए कि आपको 100 करोड़ रुपए किसी ने दे दिए। वो 100 करोड़ रुपए आपको एक एक दिन भी जिंदा नहीं रख सकते। उसमें से 1 रुपया भी आपको एक दिन के लिए जिंदा नहीं रख सकता। इसलिए यहोवा ने जानबूझकर जब मानव को बनाया, जब आदम को बनाया, तो उसके नथुनों में अपनी सांस फूंकी और आदम से कहा कि आदम, तू नौजवान है, तुझे जितनी सांसों की जरूरत है ना, उतनी मेरी जरूरत है, क्योंकि मैं तुझे सांसें दे देता हूं। इसलिए हम हर दिन, हर वक्त जब सांस लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये सांस जो है वो परमेश्वर से मिली है। जितने हमें सांसों की जरूरत है ना, उतनी परमेश्वर की जरूरत है। ये नौजवान अधिकारी और जो अमीर है वो जान ना सका।
कल्पना कीजिए कि हमारे स्कूल, हमारी पाठशालाएं जो है किसी भी शहर में क्यों ना हो, क्रिश्चियन, अगर उस स्कूल के बाहर, उस पाठशाला के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा दिया कि आप अपने बच्चों को हमारे स्कूल में भर्ती कीजिए, हम आपके बच्चों को बहुत तरक्की दिखाएंगे, आपके बच्चों को हम बहुत ऊपर स्थान पर लेके जाएंगे, लेकिन उनको सिर्फ ये करना है कि उनके पास जो भी है वो सब कुछ गरीबों में बांटकर उनको यीशु मसीह का अनुकरण करना होगा। कितने बच्चे उस स्कूल में, उस पाठशाला में भर्ती हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सोचेंगे कि सब कुछ देना है। बात यहां पर देने की नहीं है, बात यहां पर क्या यहोवा कहता है, क्या मिलने वाला है, वो है। भाइयों और बहनों, जान बची लाखों पाए, जान है तो जहां है। इसलिए भाइयों और बहनों, मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो भी आपको यहोवा ने दिया है वो यहोवा के लिए है, आपके लिए नहीं है। ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप उस इंसान के जगह पर होते तो यहोवा आपसे वही कहते जो उस इंसान से कहा है। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज हो जो यहोवा के खिलाफ है, यहोवा उसको कहते कि तू उसको गरीबों में दे दे और मेरे पीछे हो ले। आज भी बहुत सारे नौजवान लोग उस इंसान के जैसे हैं जो यहोवा के साथ, यीशु मसीह के साथ बात कर चुका, लेकिन यहोवा की आशीष लिए बिना वैसे ही खाली हाथ लौट गए। बहुत सारे लोग वैसे ही लौट जाते हैं। मेरे अनुभव में, मेरे तजुर्बे में, मेरे सेवकाय में बहुत सारे नौजवान मेरे पास आते हैं, बाइबल स्टडी लेते हैं, बैप्टिज्म के क्लास, मतलब बपतिस्मा के जो पढ़ाई होती है वो भी आधी ले लेते हैं। जब आदि में पहुंच जाते हैं तो उनको पता चलता है कि ये देना है, वो सब करना है, वो करना है, मुझे मेरी जिंदगी यहोवा के हवाले करनी है, मैं नहीं कर सकता। आदि में वो बपतिस्मा का क्लास और जो पढ़ाई है वो छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब कुछ मैं नहीं दे सकता। अगर यहोवा मेरे रास्ते में आकर मुझे मदद करता है तो ठीक है, मैं उसके रास्ते में ले जाऊंगा। भाइयों और बहनों, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगा जो पहले कुरिन्थियों की किताब में है। पहले कुरिन्थियों की किताब, उसका 15वां अध्याय और 19वां वचन। अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है तो खोल सकते हैं। पहले कुरिन्थियों की किताब, उसका 15वां अध्याय और 19वां वचन लिखा है यहां पर। यदि हम केवल इस जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। मतलब क्या? अगर किसी इंसान को लगता है कि उसको उद्धार की जिंदगी नहीं मिलने वाली, इसलिए जो जिंदगी मिली है उसे 60-70 साल की, उसमें वो खुश रहे, उसमें वो मौज मस्ती करे, और अगर उद्धार की जिंदगी का उसको आशा नहीं है तो वो अभागी है, वो लाचार है, ऐसा यहोवा का वचन कहता है। कौन लोग हैं जो आज इस दुनिया से जुड़ी हुई बातों को पकड़ के रखे हुए हैं? वे लोग जिनको उद्धार की जिंदगी की आशा नहीं है। इसलिए वो सोचते हैं कि मुझे स्वर्ग की दुनिया नहीं मिलने वाली, मुझे वो धन नहीं मिलेगा, मुझे वो आशीषें नहीं मिलेगी, तो मैं क्या करना चाहता हूं? जितना समय है उसमें खुश रहना चाहता हूं, उसी में मौज मस्ती करना चाहता हूं, जो कुछ मेरी मन की इच्छा है वो मैं पूरी करना चाहता हूं, क्या पता कल हो ना हो। भाई और बहनों, और 2 दिन है मेरे पास, और अच्छी तरीके से मैं इसी बात को अच्छी तरीके से समझाना चाहूंगा। लेकिन यहोवा का वचन कहता है कि जो यहोवा ने आपको दिया है, समय, कला,
बात करने की हो, गाना गाने की हो, संगीत बजाने की हो, यहोवा का ज्ञान, अगर वो हम उसके लिए इस्तेमाल नहीं करते, दुनिया के लिए इस्तेमाल नहीं करते, तो हम उद्धार की जिंदगी नहीं पा सकते। और यहोवा का वचन कहता है कि इस इंसान ने ये 10 आज्ञाओं का पालन किया, लेकिन लोगों के ऊपर प्रेम करके नहीं, यहोवा के ऊपर प्रेम करके नहीं, बाहरी तौर पर उसने ये 10 आज्ञाओं का पालन किया। मतलब क्या? चर्च गया, लेकिन यहोवा से प्यार करता इसलिए चर्च नहीं गया। समय है, कुछ काम नहीं है, चर्च जाना ही है, इसलिए चला गया। उसने गाने गाए, कल्पना कीजिए कि उसने गाने गाए मंदिर में जाकर, गिरजाघर में जाकर, इसलिए नहीं कि उसको अच्छा लगता है, इसलिए कि किसने उसे कहा है, तो क्या करूं, ना नहीं कह सकता, इसलिए जाकर गाने गा रहा हूं। उद्धार की जिंदगी नहीं मिलेगी। प्यार होना चाहिए यहां से जब प्यार हो जाता है यहोवा की तरफ, तब हम सब कुछ छोड़कर यहोवा के पीछे जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप नौजवान हैं, नौजवानों से बात कर रहा हूं मैं। कल्पना कीजिए कि एक लड़का एक लड़की से बहुत प्यार करता है, एतबार करता है, और वो लड़की कहती कि ठीक है, अगर तू मेरे से जिंदगी भर बिताना चाहता है, मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहता है, तो ये सब गलत बातें जो है वो छोड़ दे, तब जाकर मैं तेरे साथ जिंदगी बिताऊंगी। अगर वो लड़का उससे प्यार करता है तो क्या वो ना कहेगा? उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। अगर जो इंसान आज है और कल नहीं है, उसके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है, तो यीशु मसीह जो हमेशा के लिए हमारे हैं, उनके लिए कितना करना चाहिए। जो लड़की हमें दिखाई देती है, जो लड़का हमें दिखाई देता है, उससे हम प्यार कर सकते हैं। यीशु मसीह दिखाई नहीं देते इसलिए उससे प्यार नहीं है, ऐसा? जो चीजें हमें छू कर देखने में, छू कर देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, वो चीजें अच्छी लगती है। यीशु मसीह दिखाई नहीं देता इसलिए हम उससे प्यार नहीं करते। भाई और बहनों, मैं आज सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि नौजवान लोग वे होते हैं जिनमें ताकत होती है, उनमें हौसला होता है, और मैं चाहता हूं कि आप उस हौसले को बढ़ाइए। यीशु मसीह आज आप सभी को पुकार रहा है और कह रहा है कि मेरे पीछे बोलो। आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी में कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको यीशु मसीह के पास जाने से रोक रही है? आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। मैं नहीं जानता, यीशु मसीह ने आपको बार बार वो बात कही है। जब तक आप और यीशु मसीह के बीच में से नहीं हटाएंगे, तब तक आप यीशु मसीह के पास नहीं पहुंच पाएंगे, ना ही उद्धार की जिंदगी पाओगे। यहां पर खड़े होकर बात करना बहुत आसान है, वहां पर मोबाइल के सामने बैठकर सुनना भी आसान है, लेकिन जब यीशु मसीह कहते हैं कि जो आपके और उसके बीच में है वो छोड़ दो, तब जिंदगी शुरू हो जाती है। तब मसीह की जिंदगी भाई और बहनों शुरू हो जाती है। मैं आप लोगों को आज चुनौती देना चाहता हूं, कहना चाहता हूं भाई और बहनों, एक मौका यीशु मसीह को दीजिए आपके जिंदगी में काम करने के लिए। एक मौका, एक बार आप उसको मौका दीजिए और कहिए कि यीशु मसीह ठीक है, मैं जो भी मेरे पास है, जो तेरे खिलाफ है, सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आना चाहता हूं, मुझे मदद कर। एक मौका यीशु मसीह के दीजिए, और यीशु मसीह आपकी जिंदगी का क्या करते हैं देखिए। एक मौका। आज का संदेश का शीर्षक है एक मौका। एक। और जब आप अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे देते हो, तो यीशु मसीह आपकी जिंदगी में बदलाव लाएगा और उद्धार की जिंदगी आपको हासिल हो जाएगी। भाई और बहनों, मैं चाहता हूं कि मैं और आप उद्धार की जिंदगी का रास्ता नापे और उद्धार की जिंदगी यीशु मसीह के सहायता से पाए, क्योंकि ये विनती यीशु मसीह के चरणों में, ये विनती मैं यीशु मसीह के चरणों में करता हूं। आमीन।
तरीके से हम लोग को वचन दिया है। तो क्वेश्चन जाने से पहले हम सर को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लोजिंग प्रेयर करिए। मैं प्रार्थना करूं? क्लोजिंग प्रेयर सर। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान यहोवा, तू जो स्वर्ग में है, धन्यवाद करना चाहते हैं इस समय के लिए। यहोवा, हम जानते हैं कि हमें कोई भी ऐसी खासियत नहीं है जिसकी वजह से हम आपके कदमों में आ सके। विनती करते हैं कि यहोवा, जितने भी नौजवान लोगों ने ये वचन सुना है, उनके हृदय में, उनके दिलों में काम कीजिए ताकि वो सच्चे मसीह के लोग बन जाएं। विनती करते हैं यहोवा कि हमें उद्धार की जिंदगी क्या है वो समझने में मदद कीजिए, उसका महत्व क्या है, उसकी अहमियत क्या है, वो हमें बताइए। यहोवा, हम नहीं चाहते कि हम में से कोई भी खो जाए, बल्कि उद्धार की जिंदगी पा सके, स्वर्ग की दुनिया देख सके। यहाँ के बाद का समय हम सब कुछ आपके हाथों में सौंप कर ये विनती आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। আমেন। তো এখন আমাদের কোশ্চেন এবং প্রশ্ন উত্তরের সময়। সারমন ছাড়া অন্য কিছু যদি কোশ্চেন থাকে সেটাও আপনারা করতে পারেন। তো স্যার খোলা থাকবে, স্যার আপনাদের সঙ্গে কথা বলবে। তো যার কোশ্চেন থাকে বা আছে সে আনমিউট করে স্যারকে জিজ্ঞাসা করতে পারবে। আশা করি কোশ্চেন কিছু না কিছু একটা আছে, আমি এটাই চাইবো। कि हम तो अभी जुबा है ना, तो हम कैसे हमारा लाइफ को हम कैसे प्रभु के काम पे देंगे। इस टाइम पे तो हम बहुत बिजी हो जाते हैं ना, हमारा स्टडी रहता और हमारा कोई किसी को भी कुछ कुछ काम रहता ना, और इस टाइम तो हम ज्यादा टेंशन में हो जाते कि हम कैसे प्रभु का काम करेंगे, इतना बिजी। तो उस टाइम हम कैसे हम खुद को मैनेज करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सवाल बहुत से लोगों का रहता है कि हम इतने व्यस्त होते हैं हमारे काम में कि हम समय खुद के लिए नहीं दे सकते, तो यहोवा के लिए कैसे। तो इसका जवाब ये है बहन जी कि जो भी जहां पर भी आप है, मैं नहीं जानता कि आप कहां पर काम करती है, लेकिन जहां पर भी आप काम करती है वहां पर यीशु मसीह का काम करना चाहिए। मतलब कल्पना कीजिए कि आप सरकारी दफ्तर में काम कर रही है, और अगर वहां पे काम कर रही है तो आप काम करते करते अपने सहयोगी से बात कर सकती है कि यहोवा ने आपके जिंदगी में क्या किया है। आपको उसके लिए अलग समय निकालने की जरूरत नहीं है। जहां पर है वहां पर यीशु मसीह का प्रचार कीजिए, वो मैं जरूर आपसे कहूंगा। दफ्तर के बाद आप शायद कोलकाता में आप मेट्रो से सफर कर रहे हो या तो फिर बस से सफर कर रहे हो, घर आते हो, उस समय किसी को मदद कीजिए। यहोवा हमें इस दुनिया से कुछ अलग करने की बात नहीं कर रहा है। जो भी हमारे क्षमता में है, जो भी हम कर सकते हैं उसके तरफ से उतने भी हमें वो कहता है कि हमें मसीह का पालन करना है। चाहे बस में हो, चाहे घर में हो, चाहे को कहीं भी क्यों ना हो, हम यहोवा की बात तो कम से कम कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ किताबें हमारे पास हो, वो किताबें जाते जाते किसी को दे दीजिए, शायद आपके पास समय ना हो। तो ऐसा काम करते करते हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये एक सवाल है कि आपको पूछना है कि यहोवा मैं कहां पर काम करूं। वो सवाल आपको यहोवा से पूछना है, क्योंकि हो सकता है कि आप जहां पर काम कर रही है, हो सकता है उदाहरण के तौर पर, हो सकता है कि वो कामकाज यहोवा ने आपको ना चुना हो, वो कामकाज के लिए कोई और कामकाज आपको करने के लिए कहा होगा, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप जानते हैं कि वही काम यहोवा ने आपके लिए चुना है, तो ठीक है, वो काम करते करते ही यहोवा का काम जितना हो सके वो करना है। अब मैं पूरी तरह से सेवा में हूं, मतलब उठते बैठते जागते सोते सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की सेवा करता हूं, तो मुझे और अलग कुछ काम करने की जरूरत नहीं है यहोवा के लिए। लेकिन कुछ लोग हैं कंपनी में काम करते हैं, सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, उनकी बात अलग है।
लेकिन जैसे वो जहां पर भी काम करते हैं वहां पर यहोवा का काम मतलब प्रचार कर सकते हैं, यहोवा की गवाही दे सकते हैं, बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप बहुत अच्छा से मुझे समझा दिया। बहुत प्रभु को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु को धन्यवाद। যদি আর কারোর কোশ্চেন থাকে আমরা জিজ্ঞাসা করি। আচ্ছা, কেউ যদি বাংলা হিন্দি বলতে অসুবিধা হয় আমি ট্রান্সলেট করে দিতে পারি স্যারের কাছে কোশ্চেন। पूछिए। थोड़ा थोड़ा दूर थोड़ा दूर थोड़ा दूर, बहुत आवाज है। जो लिखा हुआ है ना, माई पापा को आदर करना, तो माई पापा को आदर करना मतलब उसको साथ में रह के आदर करना कि बाहर में भी रह सकते, आदर कर सकते हैं। आप बाहर क्यों रहना चाहते हैं? नहीं, मैं सवाल इतना अच्छे तरीके से नहीं समझा, लेकिन यहोवा का वचन कहता है कि माँ बाप का आदर करो। अब शादी के पहले आप मतलब लड़की जो है वो माँ बाप के साथ रहती है, तो माँ बाप जो भी यहोवा के वचन के अनुसार कहते हैं, यहोवा के वचन के अनुसार जो सच है, सही है, वो उसको करना पड़ेगा। उसके जरिए वो माँ बाप को आदर देती है। लेकिन उसके बाद जब वो अपने पति के घर जाती है तो हो सकता है कि माँ बाप से दूर हो जाए थोड़ी, लेकिन जो आदर है वो आदर लगातार रहना चाहिए। और ये जो आज्ञा है माँ बाप का आदर करना, ये सिर्फ माँ बाप के लिए नहीं है, जो लोग हमसे उम्र में बड़े हैं, चाहे वो हमारे शिक्षक हो, गुरु हो, हमारे गुरु, हमारे दफ्तर में जो हमसे बढ़कर काम करने वाले लोग हो, हमारे बॉस, सीनियर जिनके नीचे हम काम करते हैं वो हो, कोई भी हो जो उम्र से बड़ा है, बुजुर्ग लोग हो, हर किसी को आदर देना है। वो बात वहां पर है, सिर्फ माँ बाप नहीं, सब किसी को आदर देना है। आदर देने के लिए जरूरी नहीं कि उनके पास ही रहना है, लेकिन अगर उनके पास ना रहकर भी दूर रहते हो तो फिर भी उसको आदर करना चाहिए, अन्य लोगों को आदर देना चाहिए। सर एक क्वेश्चन मैं जो समझा हूँ सर आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, जैसे मान लो मेरा मम्मी पापा और मेरा बैकग्राउंड हिंदू है, सिर्फ मैं ही क्रिश्चियन हूँ, मेरा मम्मी पापा मेरे को पसंद नहीं करता है, मैं क्रिश्चियनिटी में आया हूँ, तो मैं भी मम्मी पापा को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन बाइबल में क्या बोला है, तो मम्मी पापा को बहुत प्यार करना, आदर में रखना। तो इसमें आपका क्या राय है, मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, इफिसियों की किताब उसका 6वां अध्याय, इफिसियों की किताब उसका 6वां अध्याय और पहला वचन, इफिसियों की किताब उसका 6वां अध्याय और पहला वचन यहाँ पे लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। इसमें क्या लिखा है? प्रभु में। प्रभु में मतलब जब तक वो माँ बाप यहोवा के वचन के अनुसार बोलते हैं। अब वो हिंदू है, लेकिन हिंदू धर्म में भी कुछ ऐसे विचार है जो बाइबल से मिलते जुलते हैं, तो वो विचार जो बाइबल से मिलते जुलते हैं, उस वक्त तक, उस हद तक उस बच्चे को, इस लड़का या लड़की को उसके माँ बाप की बात माननी होगी। लेकिन अगर वो माँ बाप हिंदू है और वो कहते हैं कि चलो आज मंदिर में जाकर मूर्ति की पूजा करें, जो यहोवा के वचन के खिलाफ है, तो वो बात नहीं माननी। उनको कहना है कि माँ बाप, मम्मी डैडी या तो फिर पिताजी, मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपका आदर करता हूं, लेकिन आपसे भी बढ़कर यहोवा है जिसकी मुझे बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि उसने मुझे सृजा है, संभाला है और वही उद्धार की जिंदगी दे सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग, मतलब जो बच्चे लोग हैं, वो यीशु मसीह में माँ बाप की बात सुने। जब तक माँ बाप यीशु मसीह के वचन के अनुसार कहते हैं तब तक आप सुन सकते हैं, लेकिन अगर वो वचन के खिलाफ जा रहे हैं तो प्यार से ही उनको समझाइए, गुस्से में नहीं आना है, ना ही उनको टोकना है या तो फिर नीचा दिखाना है। प्यार से बात करके उनको यीशु मसीह की तरफ लाना है, ये बहुत जरूरी है। जैसे कि कल्पना कीजिए कि
यहोवा मतलब वो माँ बाप कहते हैं कि हम फिल्म देखेंगे, हम थिएटर में जाकर फिल्म देखेंगे, या तो फिर ईडन गार्डन जाकर वो कि क्रिकेट स्टेडियम में जाकर क्रिकेट देखेंगे। लेकिन यहोवा के वचन में लिखा है कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, वक्त जाया होता है, पैसा जाया होता है। तो आप उनको सलाह दे सकते हैं कि उसके बजाय हम जाकर एक बगीचे में जाकर क्यों ना बैठे, जहां पर फूल होते हैं, जहां पर बहुत अच्छी बातें हम कर सकते हैं, वहां पर समय क्यों ना जाकर बिताएं। मतलब आपको उनको दूसरी बात दिखानी होगी। अगर आप कहेंगे कि नहीं, तो वो बोलेंगे कि हर चीज पे ना बोलती है, हर चीज पे ना बोलता है। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से उनका ध्यान जो है, उनका ध्यान यहोवा के वचन की तरफ लाना होगा। मतलब जो बातें वो यहोवा के वचन से मिलती जुलती हुए करते हैं, तब तक आप उनकी बात को मानना होगा। लेकिन अगर वो यहोवा के वचन के खिलाफ कुछ बोलते हैं, तो आपको प्यार से उनको समझाना होगा, लेकिन फिर भी आदर करना नहीं छोड़ना चाहिए, प्यार करना नहीं छोड़ना चाहिए, उनको वापस यहोवा के पास लाना नहीं छोड़ना चाहिए। থ্যাংক ইউ স্যার। যদি আর কারোর কিছু কোশ্চেন থাকে আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি। রিনা স্যাটিসফাইড কিনা অ্যান্সার? কোশ্চেনটা যার ছিল সে কোশ্চেনটার সঙ্গে সহমত আছে কিনা উত্তরের সঙ্গে। বলো রিনা। আমি যতদূর আমি অনুভব করতে পারছি রিনা প্রশ্নটাই করেছিল, রিনা কামিলা। তো উত্তরটা আমি স্যারের কাছ থেকে যতটা আপনি বুঝতে পেরেছেন কিনা উত্তরটা সেটা জানতে চাইছি। রিনাকে বলো, রিনা রেসপন্ড করো উত্তরটা কি পেয়েছে। এটা বার হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। রিনা, মিস রিনা, মিস রিনা জয়েন করছে নতুন। আচ্ছা আচ্ছা, তো হয়তো বার হয়ে গেছিল। মিস রিনা, কোশ্চেন আছে? এই যে জেনারেশন, এই জেনারেশন এরা মানে কি বলবো, এদের বর্তমান যা পরিস্থিতি তা এরা অর্থের দিকে খুব বেশি আকৃষ্ট। এদেরকে কিভাবে ফিরিয়ে নিয়ে আসা যায়? How can we bring back them to our faith? Because nowadays the young generation, they love for the money, they run for the money. So if have any suggestion? आधा सवाल ही मुझे समझ में आया। I understood only the half the question. Your question is how to bring the children back if they are having attraction towards the world. Yes. Not sir, money. Money and job. There's living that beautiful life, worldly life. How to bring them to Jesus Christ? You have to make them understand how much beautiful Christ is. ये सिर्फ प्यार से हम उनको यहोवा की तरफ ला सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने यहोवा का प्रेम का अनुभव न किया हो सकता है कि उनको यहोवा के प्रेम का अंदाजा नहीं हो। इसलिए एक बार इंसान को यहोवा के प्रेम का अनुभव हो जाता है तो वो यहोवा को छोड़कर नहीं जाएगा। तो इसलिए आपको अपने बच्चों को या तो फिर माँ बाप को
आपका प्यार देखकर यहोवा कितना प्यार करता है वो दिखाना चाहिए। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि उनसे बात करके पूछो कि वो पैसे से क्या करना चाहते हैं, पैसों से कितनी ज्यादा उम्र वो जी पाएंगे, 70, 80, 90 साल, उससे ज्यादा वो जिंदगी उनको नहीं मिलेगी जो पैसा देता है। और वो भी पैसा कब तक कमाएंगे, 60 या 70 साल की उम्र तक। लेकिन उद्धार की जिंदगी जो है वो हमेशा, पैसा किस लिए लोग कमाते हैं, खुश रहने के लिए। पैसा क्यों कमाते हैं, ताकि बाकी के लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल सके, उसके लिए पैसा कमाते हैं, ताकि लोग उनको आदर करें और मान सम्मान दें। लेकिन उद्धार की जिंदगी, स्वर्ग में हमारे सामने स्वर्गदूत झुकने वाले हैं और हमें मान सम्मान मिलने वाला है। यीशु मसीह के सिंहासन पर बैठकर हम सियासत चलाने वाले हैं। अगर वो बात है तो वो बात उनको समझ में चाहिए, और वो भी 60-70 साल के लिए नहीं, हमेशा की जिंदगी है। तो ये धीरे धीरे उनको समझाना होगा, तभी जाकर ये हो सकता है। क्योंकि उन्होंने जो चीजों का अनुभव करना चाहिए उद्धार की जिंदगी में, उन्होंने अनुभव वो अब तक नहीं किया है, इसलिए उनका ध्यान दुनिया की तरफ भटकता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में चमक दमक है, यहोवा की जिंदगी में चमक दमक दिखाई नहीं देती, वो अनुभव करने की बातें होती है। लेकिन बहुत सारे नौजवान देखकर निर्णय लेते हैं, सुनकर निर्णय लेते हैं, अनुभव करके नहीं। लेकिन यहोवा की जो जिंदगी है वो देखकर पता नहीं चलती, अनुभव करने के बाद और ज्यादा से पता चलती। इसलिए यहोवा और उनकी जिंदगी को अगर आपके बच्चों को उनकी तरफ लाना है तो उनको यहोवा की तरफ आकर्षित करना होगा, जैसे कि मैंने कहा। थैंक यू सर। एक गवाही दूंगा आपके लिए, जो लोग नौजवान हैं। मैं भी नौजवान हूँ, ऐसी बात नहीं कि बूढ़ा हूँ, ऐसी बात नहीं कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं भी अभी तक शादी मेरी नहीं हुई है। कहने की बात यह है कि जो भी नौजवान लोगों के पास रहता है वो सब कुछ मेरे पास है। आप बोलिए, जो नौजवान लोग दुनिया में काम करते, इतना पैसा कमाते, उनके पास नहीं है जो मेरे पास है, और वो भी यहोवा से मिला हुआ है। मैंने उसके लिए कमाई नहीं की, मैंने उसके लिए कष्ट नहीं किया। जिस मोबाइल पर मैं बात कर रहा हूं आपसे, वो 73,000 रुपए का फोन है, 73,000, iPhone 11। वो मैंने कष्ट करके नहीं कमाया। लोगों ने कहा कि आप यहोवा की सेवा करते हैं, आपको कॉन्फ्रेंस कॉल बहुत होते हैं, जूम मीटिंग आपके बहुत होते हैं, कैमरा पर आप वीडियो शूटिंग करते हैं, तो आपको 4K वीडियो जो फिल्मों में यूज करता है वो चाहिए, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा फोन खरीद के दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में जाकर पैसे कमाओ तभी जाकर ये चीजें मिलेगी, बिल्कुल नहीं। मैं आपको यहाँ पर लालसा नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन कहने की बात यह है कि जो दुनिया में लोग रहते हैं, इतना कमाते हैं, फिर भी उनके पास नहीं रहता, वो चीजें मेरे पास है। तो मुझे यहोवा दे सकता है तो आपको भी दे सकता है। जो लैपटॉप है वो भी एप्पल का लैपटॉप है, मैंने उसके लिए पैसे नहीं खर्च किए, एक भी रुपए खर्च नहीं किया उसका। 1,35,000 का है वो, किसी ने मुझे गिफ्ट दिया। अगर मुझे दे सकते हैं, यहोवा की सेवा करता हूं इसलिए, तो आपको भी दे पाएंगे, क्यों नहीं देंगे आपको। जिस घर में पहले रहता था, अभी घर चेंज किया मैंने, जिस घर में रहता था वो 3 BHK का फ्लैट था, स्विमिंग पूल, जिम, पार्किंग लॉट, सब कुछ, सिक्योरिटी, सब कुछ। एक पैसा भी उसके लिए, 1 रुपए भी मैं खर्च नहीं करता था। AWR का स्पीकर हूं, AWR के जरिए से मुझे मिल गया था वो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यहोवा अगर मुझे दे सकता है तो आपको भी दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता। कुछ कमी घटी नहीं है मुझ में, जितना मांगा उससे ज्यादा ही मिला। ये गवाही क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ऐसा ना हो कि लोग कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह की जिंदगी अगर जीनी है तो गरीब, कपड़े फटे पुराने और बहुत ही दुखी जिंदगी। नहीं नहीं नहीं,
हवाई जहाज से, फ्लाइट से ट्रैवल करता हूं, 3 स्टार होटल में रहता हूं। क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी जो है वो यहोवा के लिए दे दी है। कहने का मतलब ये है भाई और बहनों कि आपने अनुभव नहीं किया यहोवा की जिंदगी की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहोवा की जिंदगी को अपनाओगे तो मुझे जो मिला है वो सब कुछ मिलेगा, नहीं, वो नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो आपको जरूरी है वो आपको मिलेगा। मेरे लिए सब कुछ जरूरी है, इसलिए यहोवा ने मुझे दिया। अगर जरूरी नहीं होता तो नहीं देता। धन्यवाद सर आपको, आप हम लोग को टाइम दिया है। और सर हम लोग के साथ और 2 दिन रहने वाला है, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो वेडनेसडे বুধবার আর শুক্রবার শুক্রবার বুধবার আর শুক্রবার আমাদের সঙ্গে থাকবেন স্যার। তো আরো যদি কোশ্চেন থাকে আপনারা লিখে রাখবেন, স্যার আমাদেরকে উত্তর দেবেন। তো এখন আমি এই সময় আমাদের প্রেসিডেন্ট পাস্টার নীরবেন্দু দাসকে দিচ্ছি। Especially from my side, thank you. I really appreciate it. Okay, Dr. Sailesh, Yes. we want to thank you. And my wife is sitting here and she's listening to every word that you have spoken. Praise And God. we also have got young boys. One is working as a physiotherapist in the city of Kolkata, and the other is still in Manila. He's a musician there, he's studying. And so we are very much concerned about the young people. That's why having concern for the youth, we have started this youth program for South Bengal section. Truly speaking, I did not know that so many volunteers. We have many volunteers who are working as evangelists, like Gospel Outreach and Global Mission, and Elder Tim Saxton's sponsored volunteers. Some of the volunteers I did not know have. I mean, the children are not children; they are youth, college-going students, and class 12, class 10, and through this Zoom ministry, when we started, I told them that your family must be in. In the process, I got to enter into their houses. We used to meet once in a month, only the workers at different places. Now we are meeting twice or thrice a day, and we are entering into their homes. And then when we found out that there are young people, we thought that we must have youth program. And then as we have been looking for a right opportunity, now we found that it works. Now we are able to enter into the families, and we saw so many young people. And now we have 2 young men leading out, and maybe 2 young ladies leading out in this youth ministry. One is Mrinal, and another one is Somitro from Spicer, and Shupriti, the one who asked the first question, and Molina. Oh, no, not Molina. Rina, where is Rina? Somebody, okay. And Mukul Das. And we have Jaya. So 6 of them. 6 of them are working in this team, youth ministry, online ministry. And I think it is rightly, the Lord has given this privilege that you are chosen who represent truly the young generation, and you will be able to inspire these people. The question they asked is not the question they've made. It is the situation they are in. And so when you hear a question being asked, initially they are a little shy, but the spirit which speaks to them to let out, they are asking, because we have been facing these questions here. And young people responding to this one, it's wonderful. We want to thank you, and we will be able to see you next 2 days. As Mrinal says, God bless you. You're a busy man. And tell your people how much South Bengal section appreciates. And anyone who wants to speak to the youth, let them join. Thank you, and God bless you. Thank you so much.
ধন্যবাদ সবাইকে যে আপনারা যত সময় যোগ করেছেন এবং ধন্যবাদ স্যার आपको कि आप बहुत 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 कीमती टाइम लेके हम लोग के पास आए हैं। तो एट लास्ट सर हमारा इसमें ज्वाइन हुआ था 28 मोबाइल कनेक्ट हुआ था। सर आप भी देख सकते हो जी कितने सारे लोग बैठे हैं मोबाइल के अंदर। तो सर आपको धन्यवाद और फिर से हम लोग আবার আমরা সবাই বুধবার দিন ঠিক যত সময় জয়েন করব স্যার मैं आई होप सर वेडनेसडे मोर देन 28 आई होप सर Okay. थैंक यू सो मच Thank you so much. God bless.